हाँ, आप फॉर्मल तरीके से आइए। आप फॉर्मल तरीके से आइए। सुशांत सिंह की बहन, अच्छा, कौन सुशांत सिंह? सुशांत सिंह राजपूत की बहन है ये, वेरी बहन। सारे न्यूज पेपर में इसी का फोटो आप देखे होंगे, इसके पिताजी के साथ। Yes, please. हाँ, yes, Please, come. yeah, Yes, please coming, take coming. your seat. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. हाँ, good afternoon. दिव्या, अपना परिचय दीजिए। Tell us something about you. My roll number is 5658224. Did graduation from Patna University from Mass Communication, and then I did my masters from Tata Institute of Social Sciences from Women Studies, and then after I worked in Jharkhand as the communication professional there, and now I am doing I am a cultural fellow from Ministry of Culture, CCRD. Ministry of Culture, Government of India. My hobby is theatre. My hobby is theatre and folk songs. I remember my mother by listening to folk songs. ऑप्शनल पेपर क्या है आपके? My optional is sociology. What is hobby? Hobby is theatre. So that is a very, very good field. So why you are coming to a field which is really very tense? Every day, day and night, you will be tense. Huge workload. The work completely, this As I work said, is sir, in कि this is white my and hobby. I want to do. I am continuing it when I was doing my school and colleges, and even when I was working. It's just my hobby. I We don't can want make it to as a just- profession. It is a very good earning source. It is a very good social service. You give a smile to the people, lakhs and crores of people. There are several actors and actresses from Bihar who are doing so, and they are very really popular. Even you cannot become that much popular after becoming a DM also. Actually, my interest area is actually I love Bihar. I want to live here. I study. no, this is not a satisfactory answer. You are not giving satisfactory answer. You people can love Bihar with theatre also. Bihar, but I wanted to come back. No, we are asking we are asking logic behind your decision. You should be focused in giving your answer. Why do you want to be a civil servant? I want to become a civil servant because I love my state as well as I love working with people. And as I said that my interest area is theatre, that is also connected to people. And I work also in the government schemes. There also I work with people, and then my education is rural development and all these things. So stay with the people. If central government is if central get government into is the, going to appoint you, services, then I will have my स्टेट चुप्पी वाला ही कहा था ना. Audio is disturbed. If central government is going to appoint you as a DM in a state like Rajasthan or Gujarat, district magistrate like Rajasthan and Gujarat, you will accept it or refuse it because you love Bihar. If it means loving for your state doesn't mean that always you will stay here or not. Means if you have a work responsibility and if you can, I can go there and I can give my. अच्छा, why you love Bihar? my, Why you love Bihar? क्या sir? Why you love Bihar? I love Bihar. I love the culture. What you of like? Bihar What you and, like? What you like most in Bihar? Culture of Bihar and the people. I mean, struggling nature of the people is what I like. People, even if they have very less resource, उनके पास resource कम रहता है sir, then also they have that stamina to fight back. अच्छा, Even इस at चीज़ the को places इस चीज़ को इसके पहले किसी ने रियलाइज़ किया है क्या, जो आप बोल रही हो? कोई बुक वगैरह है इसको लेकर के?
एक बार सर रिपीट करेंगे सर? आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन यूज करो। ईयरफोन है तो लगा लीजिए। पूरे देश में एक जैसे नेटवर्क है, बारिश कहीं भी खराब हो सकती है। बारिश- बारिश का प्रॉब्लम से, बारिश से उसको कोई मतलब नहीं है। बाकी दिन तो बड़ा अच्छा, है। बाकी दिन अच्छा था। इंटरनेट है दिक्कत, वो ब्रॉडबैंड में ना दिक्कत है, ये लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं। नहीं, हमने ये आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि जैसे बिहार को आप लव कर, यू लव बिहार, और उसके फीचर्स आप बता रही हैं कि बिहार के लोग क्या हैं क्या है, ऐसा कोई स्टडी है क्या कि आपकी अपनी ये परसेप्शन है ये? हमें लगता है कि वहाँ पर पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, इतना बारिश हो रही है। हेलो ठीक है, हेलो। ओके, Yes, sir. ओके, ओके, audible ओके। है क्या सर? हाँ, आप तो ऑडिबल हैं, हम लोग ऑडिबल हैं आपके लिए। यस सर, यस सर। मैंने सर, ये ये स्टडी नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने तो अच्छा, पे, मैंने और भी आप मैं बहुत सारे एक मिनट मैंने आप जो इनफॉर्मली जो आपने ऑब्जर्व किया है बिहार को, वो आप रिप्लाई कर रही हो। आप कोई ऐसा स्टडी, आपने बिहार के बारे में कोई ऐसा स्टडी हो जिसके आधार पे आप इस तरह की बातें बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है? जी जी नहीं सर, आपने बोला, आपने सब सवाल सुनते हैं? नहीं, मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा ना, हाँ, हाँ। मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया, आप अपना ये वीडियो ऑफ करिए, राहुल कुमार अपना वीडियो ऑफ करिए। हाँ, आप डबल क्लिक करिए अपने स्क्रीन पे, दिव्या। अपने स्क्रीन पे डबल क्लिक करिए। मैंने कर रखा है सर। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, अब आगे। ठीक है, डबल क्लिक में आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये ला बिहार को जो आप बिहार को, जैसे मान लो कोई फॉरेन डेलीगेट्स आया हुआ है, हाँ, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार अपॉइंटेड यू एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस बिहार टू दीज फॉरेन डेलीगेट्स? Bihar is the state where it is dependent on agriculture, and there are many opportunities here in the industries, in the cultural sectors. Even we have a very good human resources. They are skilled as well as unskilled laborers. So you can invest here. You can start your industries here, as well as if new things will come here, it will be good for Bihar as well, and it will be good for your country if you. So why there is a large scale migration from Bihar if these all opportunities exist in Bihar? Yes. Sir, there are migrations from here because there are opportunities to cater these people who are skilled. That is not available. That is very less available. I say. It is not available much. That's why skilled laborers as well as the unskilled इनके subject से laborers, question we पूछिए। don't have an industry to accommodate them here. So Sociology. most of the time in the agriculture we have a disguised unemployment. चलो, there. सोशियोलॉजी में अभी More number of कोई people- ऑलरेडी ऐसे सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जो अभी जीवित हों, स्टिल अलाइव। सर ज्ञानग्रेज है सर, और योगेंद्र सिंह है, इंडिया के जो है योगेंद्र सिंह हैं। ऐसा मत बताओ, योगेंद्र सिंह अभी जीवित हैं कि मर गए अभी थोड़े दिन पहले? आई हैव नॉट फॉलो सर, मैंने फॉलो नहीं किया है। मुझे योगेंद्र सिंह का मैंने आर्टिकल अभी 1-2 महीने पहले तक मैंने पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मरे हुए उनको कई साल, 2-3 साल हो गया मरे हुए, 1 साल तो हो ही गया, तो फिर सॉरी, से योगेंद्र यादव आई सेड, आई एम सॉरी, योगेंद्र यादव। योगेंद्र समाज यादव तो शास्त्री सिर्फ कहेंगे? योगेंद्र यादव को समाज शास्त्री कहेंगे? वो शिक्षाविद और पॉलिटिशियन है। हेलो, योगेंद्र यादव समाज शास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं? मतलब उनका CSDS में उनकी बहुत सारी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा है सर। तो उनको आप क्या मानती हैं? उनको आप क्या मानती हैं? सोशोलॉजिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं कि पॉलिटिशियन हैं? अभी कुछ दिन पहले सर हमने रोमिला थापर की एक बुक पढ़ी थी सर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स करके। मैंने बस उसका इंट्रो पढ़ा था। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दे आर एकेडमिशियन, सम आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविज्म एज वेल एज डूइंग सम रिसर्च वर्क। समाज इनको, इनकी पार्टी का क्या नाम है, योगेंद्र यादव की पार्टी का?
His son, I don't remember, sir. योगेंद्र सिंह को जानती हैं आप? Yes, sir. Yogendra Singh को जानते हैं। किस शहर से जुड़े हुए थे वो? अच्छा चलिए, आप जैसे डोमिनेंट कास्ट का एक डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था? NN श्रीनिवास ने। और इनके द्वारा कुछ कुछ कंसेप्ट दिए गए थे, नाम बताइए उसका। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब चीजों पे उन्होंने रिसर्च। संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, क्योंकि संस्कृताइजेशन जो है ये कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट के ऊपर NN श्रीनिवास ने ये पॉइंट किया था। ये टेलीविजन ने रामायण महाभारत को, टेलीविजन क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन। ना टेलीविजन इंडिया में कहाँ बना? वो तो वेस्टर्न इक्विपमेंट है ना वो। यस सर, you're right सर, ये तो है वेस्टर्न इक्विपमेंट, लेकिन इसका यूज जिस तरह से होता है that we can use it। आप हमको आप हमें क्वेश्चन पूछने दीजिए। तो अभी तो आपने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन हमने तो ये देखा कि टेलीविजन के कारण, टेलीविजन जो कि वेस्टर्न टूल है, उसने रामायण और महाभारत को इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। यस सर, तो जैसे सर सोशियोलॉजी में जो टर्म है सर पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें वही बात है कि हाउ वी कैन यूज द वेस्टर्न इक्विपमेंट और वेस्टर्नाइजेशन का जो पॉइंट है, उसको भी हम लोग किस तरह से उसको कल्चरली किया जा सकता है कि आपने ही तो कहा ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आपको तो ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपको तो ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस होता है? सभ्यता लॉन्ग प्रोसेस, उसका एक टाइम पीरियड होता है और उसका एक रिटन हिस्ट्री। Culture is a part of life, but वो day to day जो एक दोनों के एग्जांपल, एक दोनों का एग्जांपल बताइए। जैसे सर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन इज जस्ट सिविलाइजेशन, उसके अंदर में भी बहुत नहीं, हम समझ गए। आप हम लोग समझ गए, हमें समझाने की कोशिश मत करिए। हम लोग समझ गए, हमने एग्जांपल पूछा है। तो सिविलाइजेशन का एग्जांपल है हड़प्पन, कल्चर का क्या एग्जांपल है? कल्चर का एग्जांपल बताइए। कल्चर कैन बी द सबऑर्डिनेट, लाइक इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फोक डांसेस। कल्चर का एग्जांपल कोई वैसे एग्जांपल बताइए, किसी हिस्ट्री में एग्जांपल बताइए। वैदिक संस्कृति कहा जाता है ना, वैदिक कल्चर कहा जाता है, वैदिक कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ऐसा तो आप अपने डेफिनेशन के आधार पे ये दोनों को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? सर वैदिक कल्चर तो जो भी सर सिविलाइजेशंस है, वो तो एक उसका एक हिस्ट्री है और उसका एक रिकॉर्डेड एक पास्ट होता है सर। और कल्चर जो था दैट इज कंटिन्यू टिल नाउ, वो मुझे लगता है कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग you can say sorry is also a very good answer। आपने मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली है पटना यूनिवर्सिटी से। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी या सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लोग कहते हैं। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताइए, क्या है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मीडिया के पास? मतलब मीडिया को राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हैं? सर मीडिया बोल करके कोई राइट्स तो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 19 के थ्रू मीडिया जो है अपने राइट्स को उससे डिफाइन करती है। कौन सा? 19 में बहुत सारे ये हैं, सब क्लॉजेज हैं। 19(1) 1 में भी क्लॉजेज हैं, 6 क्लॉज हैं 1 में। 19
19 clause 1 sub clause A. सब क्लॉज ए 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन Expression, yes. है ना, ये फंडामेंटल राइट है और Yes, इसी sir. में फ्रीडम ऑफ मीडिया भी आता है। तो अभी Yes, sir. थोड़ा सा देश और सोसाइटी, आपने कहा बिहार को आप बहुत लव करती हैं, Yes. तो मीडिया के रोल को जूस मिक्स वाला जूस कैसे चेंज किया जाए मिक्स जूस जिससे कि बिहार के डेवलपमेंट में मदद ग्लास वहीं से मिले। लेना, प्लास्टिक आप वाला। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तब क्या कर सकती हैं आप? सपोज कि चीफ मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उस समय क्या कर सकती हैं मीडिया को इस्तेमाल करके? मीडिया को सर अगर जो पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे जो भी जिस तरह से अभी जो जीविका में काम हो रहा है और भी कई जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं, अगर उसको भी अगर स्पेस दिया जाए मीडिया में तो एक पॉजिटिविटी भी आएगी। और जो मीडिया को सर जिस तरह से आपने बोला फोर्थ पिलर है, उसी तरह गवर्नमेंट दोनों में एक हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ गैप बिटवीन देम, एक डिस्टेंस तो होना चाहिए, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट हम यही चाहेंगे कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उसको भी मीडिया में अगर जगह मिले ठीक तो है, एक very good. positivity दिव्या हाथ को ऐसे हाँ। हाथ को ऐसे बांध लीजिए, आपका दिख नहीं रहा है इसमें, थोड़ा सा इधर कर। हाँ हाथ ठीक को है, ऐसे बांध लीजिए, हाँ हाथ वैसे ही देखिए, हाथ को जरा मूवमेंट नीचे कम कर लीजिए, करिए। नीचे कर लीजिए। हाँ हाँ मूवमेंट कम करिए। हाँ ये एक चीज़ और बता दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो कुछ योजनाओं का वो आप जो है मीडिया के माध्यम से ऐसे पहुंचाइए लोगों के पास कि उसमें गलती होने का, भ्रष्टाचार होने का, डिले होने का, सारे जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप एक्सपर्ट हैं, मैंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो मीडिया का आप इस तरह से इस्तेमाल करिए कि जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की स्कीम्स जो चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, जो प्रोग्राम्स चलते हैं, उनमें डिले होने का, गलती होने का, भ्रष्टाचार होने का, जो सारी संभावनाएं हो शून्य हो जाएं या मिनिमम हो जाएं। कैसे करेंगी आप? सर इसको इस तरह से किया जा सकता है कि अगर कोई प्रोग्राम नया लॉन्च हो रहा है सर, तो उसको लेकर के अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, लोगों के बीच में बात चली जाए कि इसमें कितने फंड्स आए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, तो वो चीज़ें जो है वो जो है लोगों की नज़र में भी वो चीज़ें रहेंगी, तो एक तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है वो भी आ सकती है, और साथ में जो लोग हैं वो अवेयर रहेंगे, और जो डिस्टेंस है लोगों पीपल, और एक डर सा रहता है सर जो गांव में लोगों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, वो एक फ्रेंडली तरीके ठीक से है, वेरी गुड। निकाला जाएगा। एक और सवाल बता दीजिए मीडिया से, अभी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सुना होगा आपने, टॉयलेट बन रहे हैं पूरे देश में या फिर बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारी शिकायतें आई हैं बिहार में। आप चूँकि बिहार के रहने वाली हैं, आपको बहुत सारी जानकारी होगी, शिकायतें आई हैं, टॉयलेट बना नहीं, पेमेंट हो गया, टॉयलेट अधूरा है, पेमेंट हो गया, या किसी को 2 बार पेमेंट हो गया। इस प्रॉब्लम को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए SDM, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगी? सर ये प्रॉब्लम सर बहुत अभी बहुत आ रही है पेपर में कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इसको लेकर के स्ट्रगल कर रही है। तो ये जो है सर, इसको एज अ मीडिया में अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है बिल्कुल, सॉरी सर, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम। उसको बुक के बीच में फंसा लीजिए। हाँ यस। तो सर ये प्रॉब्लम जो आ रही है सर, मीडिया इसका बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है सर, कि आपने बोला कि ये डबल बार जो हाँ, चला डबल जा रहा पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट बहुत नहीं समय हो रहा जो, है। यस यस सर। तो इसको मीडिया के थ्रू ये हो सकता है सर कि जो पेमेंट हो रहा है किसी भी, क्योंकि बहुत सब पेमेंट्स जो होता है, आधा पेमेंट पहले किया जाता है सर, आधा पेमेंट बाद में किया जाता है। तो जब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, टोटल पेमेंट बाद में किया जाता है और फोटो उपलब्ध करा देने के बाद। चलिए ठीक है, मीडिया का क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, ठीक है, वो मैं समझ गया आपका सवाल। अभी आज देश में मीडिया का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहाँ फेल कर रहा है मीडिया, या झूठा क्रिटिसिज्म है? सर जब भी किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, देयर इज समथिंग देयर, तो उसमें तो कुछ तो होता है।
ये तो फैक्ट है सर कि येलो जर्नलिज्म भी जब बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज हो रहे हैं। येलो जर्नलिज्म में ये कहा जा सकता है कि बहुत चीज़ें जो है, जो छोटी चीज़ें हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को दिया जा रहा है। बहुत समय जो है मीडिया का जो इथिक्स है कि आप जब तक चीज़ों को कंफर्म ना हो, कोई भी चीज़ के आपके पास साक्ष्य ना हो, तब तक आप ना नहीं दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को इथिक्स को फॉलो नहीं करने के कारण अभी मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मतलब सही नहीं चल रहा है। अगर ethical कौन सा चैनल, कौन सा न्यूज़ चैनल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा न्यूज़ चैनल आपको पसंद है? सर टीवी तो बहुत कम देखते हैं सर, लेकिन न्यूज़ चैनल्स में हम सर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अपडेट जो भी लेटेस्ट जो घटनाएं घट रही हैं उसका? जी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ सर, और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वीडियोस आते हैं, कोई अच्छे रिपोर्ट्स होते हैं तो मैं वो भी देखती हूँ। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? द हिंदू पढ़ती हूँ। अच्छा, कहाँ से मेन द हिंदू कहाँ से छपता है? दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ। द हिंदू कहाँ से छपता है मेनली? चेन्नई से। अच्छा, चेन्नई से, ठीक है। हिंदू में कुछ चेंज हुआ है क्या अभी? दिव्या, आपने बताया कि कुछ विमेन स्टडीज पर आपने किया है। जी सर, जी मैम, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से एमए किया है विमेन स्टडीज। विमेन स्टडीज पर आपने एमए किया है, तो विमेन की मेन प्रॉब्लम्स क्या है आपके हिसाब से, और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? मैम, सबसे पहले मुझे जो लगता है कि विमेन का जो प्रॉब्लम है कि जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो होते हैं वो मतलब कल्चरली बहुत कम है, नॉट ओनली इन द इंडिया, एल्सवेयर ऑल्सो। सो वो जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम है, तो लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो खुद लेने में बहुत समय सक्षम नहीं रहते, जिस कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे और गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के कई चीज़ें कर रही है, जैसे उनके एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कई स्कीम्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। जैसे अभी साइकिल योजना को लेकर के बिहार में जो साइकिल योजना है, उससे मतलब एक मोबिलिटी जो है महिलाओं का वो इंक्रीज हुआ। women are moving out, they are going to shops, not just school, shops जा रही हैं, दोस्त के घर जा पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मोबिलिटी इंक्रीज होने से, और पढ़ाई बेहतर अगर हो और बेहतर हो, उनको हायर एजुकेशन मिले, जो वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है मैम वो बहुत कम है अभी। 3.6 समथिंग नेशनल लेवल पे शायद है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन ये बहुत कम है। अगर वो वर्क फोर्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स में आए और तब पैरिटी बने तो चीज़ें बेहतर होंगी। और गवर्नमेंट नहीं, कुछ विमेन के कुछ लीगल राइट्स बताइए जो विमेन को गवर्नमेंट ने दे रखा है। जी, ये अभी तो एक ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 26 कौन सा एक्ट था, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कौन सा एक्ट है वो? सर इसके मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 17 है कि 18 है? 17 मुझे तो 18 बता रहे थे। अच्छा, अच्छा ठीक है, और बताइए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अलावा? उसके अलावा जो बिहार गवर्नमेंट है 35% रिजर्वेशन जो है वो जॉब लीगल राइट्स, हमने लीगल राइट्स पूछा है, लीगल। सॉरी और भी जो है सो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी जो आर्टिकल 15 के हमने लीगल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं पूछा है, लीगल राइट्स। जो डाउरी को लेकर के। हाँ बताइए कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? सॉरी सर, मुझे अभी मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए मुझे याद नहीं है। डाउरी को लेकर के चाइल्ड इंटरनेशनल जरूर पूछिए सर। इंटरनेशनल से पूछिए। ये वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट्स को लेकर के है। चलिए दिव्या जी, एक प्रश्न तो मुझे ये बता दीजिए कि आपका फील्ड मीडिया रहा है, मतलब बड़ा ग्लेमरस फील्ड है, और आपकी हॉबी भी उसी तरह की है, थिएटर, और बिहार के गांव में इतने धूप पसीने में कैसे काम कीजिएगा आप? सर मैंने झारखंड के खूंटी से और जयपुर में काम किया है 1 साल। वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, जब जिससे तो मैंने 1 साल खूंटी में रह करके काम किया है। और
बस एक मतलब सिटी बेस्ड नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम आया था सर कि जो नक्सलाइट एरियाज है वहाँ भी कल्चरली लोगों को अगर थिएटर के थ्रू, स्ट्रीट प्ले के थ्रू उन लोगों को अगर अवेयर किया जाए सर, तो वो लोग बहुत कुछ कि जो गलत रास्ते पे अगर चले भी जाते हैं तो वो आ सकते हैं। तो ये एक सॉफ्ट पावर की तरह भी काम कर सकता है और मेरा है कि मैंने काम किया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारत चाइना के बीच में क्या इशू चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने अभी सर कुछ इश्यूज हो गए थे तो मैंने अभी बहुत फॉलो नहीं किया है, लेकिन ये है कि इंक्रोचमेंट का जो इश्यूज था, चाइना ने इंक्रोच करने की कोशिश की है और हम इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अभी ये बॉर्डर इश्यूज को लेकर। बिहार के कुछ आर्टिस्ट का नाम बताइए जो नेशनल फेम के हैं, जो पटना से जुड़े हुए हैं। सर यू आर नॉट ऑडिबल, आप ऑडिबल नहीं है सर। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जो इंडिया लेवल पे काफ़ी फेमस रहे हों और वो पटना से जुड़े हों। मनोज वाजपेयी पटना से? मनोज वाजपेयी पटना से तो नहीं है। नहीं, बिहार से है सर, सॉरी नहीं। सुशांत सिंह हैं जो कि पटना से है और और भी थिएटर के सर कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि पटना से हैं और भोजपुरी में भी कुछ आर्टिस्ट हैं सर, मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, कुछ पटना और से पूछिए। basically पटना प्रॉपर पटना से एक शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा, मैंने बोला शत्रुघ्न सिन्हा। नहीं बोला। नहीं बोला। चलो ठीक है। ऐसा है कि आप कुछ ऐसा बताइए जो बोर्ड को, कुछ स्पेशल थिंग बताइए जो आप बोर्ड को बताना चाहती हैं, जो हम लोगों ने नहीं पूछा आपसे। सर मैं एक ये फोक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। हाँ बताइए, बिल्कुल गाइए। किस भाषा? मगही किसमें था? मगही में था ये? मगही में था। इस भाषा में सर ये इसमें है सर, मगही में नहीं है सर, ये मैथिली और मैथिली जो ठेठ मैथिली होता है उसमें है सर। अच्छा, मैथिली में। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। यू कैन गो नाउ। सर कुछ फीडबैक से हाँ, तो हम लोगों को कुछ थैंक यू अगर बोल दो तो फीडबैक दे देते हैं। बोला, मैंने बोला। अच्छा चलो, हम लोग पास समझ आवाज़ नहीं आई। पटना की स्थिति बहुत खराब है। पटना की स्थिति हर मामले में खराब है, कोरोना के मामले में भी खराब है और सिग्नल के मामले में भी खराब है। बारिश। तो आप खुद ही अपना असेसमेंट करो। 0 से 10 के बीच में आपको अपने आप को मार्क्स देना हो तो कितना मार्क्स दोगी आप अपने आप को? 6, 5, 6। बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सर। मैम इनको बता दीजिए, इनको फीडबैक कुछ दे दीजिए। फीडबैक यही है। दिव्या, you have a very pleasant personality, confident way of expression, and you do seem impressive in every other way. Only that, as you have realized yourself, that there is a need to prepare a lot. You have to come prepared for the interview, and coming for this kind of interview, there is nothing fixed what will not be asked. The more educated you are, the more clues we have to question. Since you are from mass communication, since you have studied women studies, you have done your graduation, since you are from theatre, since sociology is your optional, definitely be very thorough with the subjects, the courses that you have taken. हमें लग रहा है कि जैसे शुरू में जो आपने जो अपना इंट्रोडक्शन का थॉट प्लान नहीं किया है,
थोड़ा सा आप जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो थोड़ा टाइम लो, टाइम लेकर के अपना थॉट प्लान करो कि आपको क्या बोलना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है। हर बिहार का आदमी जो बिहार में जा रहा है वो बिहार को प्यार करता है, ठीक है, लेकिन अब उसका जब आपसे लॉजिक पूछा जाएगा तो बहुत क्लियर लॉजिक नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी, कई जगह आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं खुद ही। जैसे आप बिहार को प्यार करती हो इसलिए बिहार जाना चाहती हो, जब हमने राजस्थान गुजरात में डीएम बनाने की बात करी तो आपका वर्जन चेंज हो गया क्या है कि बिहार को प्यार करने का मतलब बिहार में रहना नहीं होता है, ठीक है। तो वही तो फिर पीसीएस को बिहार पीसीएस में जाने का तो मतलब नहीं रहा ना बिहार को लव करना। तो उसके- सर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा उसका मेरा क्या जवाब होना चाहिए? अब उसका तो जैसे सिविल सर्विसेज में क्यों आपके साथ बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखे, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आपका जो मास कम्युनिकेशन और ये जो थिएटर का, जैसे सर ने कहा कि बहुत ब्राइट इसका फ्यूचर है, ये सिविल सर्विसेज में जो अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है। तो ये तो इसका एक लॉजिक आपको सॉलिड ढूंढना पड़ेगा, केवल ये बताने से काम नहीं चलेगा कि मैं बिहार को प्यार करती हूँ इसलिए बिहार जाना चाहती हूँ। आप थिएटर के थ्रू भी बिहार को प्यार कर सकती हो, बिहार में अवेयरनेस पैदा कर सकती हो, विमेन में एम्पावरमेंट कर सकती हो, बहुत सारी चीज़ें थिएटर के थ्रू कर सकती हो। तो इसका एक तो आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका आंसर जैसे हम ये तो कह सकते हैं ना सर कि अभी भी जैसे मेरा ये कम्युनिकेशन मैनेजर जीविका में जो हुआ है तो सर ये तो मेरा ग्राउंड लेवल का ही काम है, तो ये तो कह सकते हैं नहीं, ना नहीं, कि तो वो तो ठीक है, मैं already समझ मैंने गया। इसमें काम किया है तो मैं इसमें काम करना चाहिए। Actually, your version should not vary. It should not differ. आप एक बार कुछ बोल के दूसरी बार जब बोलते हो वो ठीक नहीं रहता. Whatever you say, stand by your words. Your answer should be more like an officer, less like a common girl or a common citizen or a common person. You are going to hold a very important post, and in that post there is no dilly-dally or there is nothing which should be which is not very clear. So do make sure. I love India, fine, but I go abroad. What's wrong about it? You love Bihar, fine. So loving Bihar means so many people are. The whole state is living there. Everybody is not a civil servant. What sir says means this only. कि आप एक अपना सॉलिड आंसर इसके लिए सोच के रखिए, क्योंकि ये वेरी कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकता है। तो जब आपके पास इतनी वाइड रेंज है तो आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहिए? ठीक है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा जैसे सोशियोलॉजी में है, सोशियोलॉजी वाला देखो ये बड़ा कॉमन, हमने जो सिविलाइजेशन और कल्चर का डिफरेंस पूछा, या जो आपके संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन वाला क्वेश्चन पूछा, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर भी कई जगह कॉन्ट्राडिक्ट, अब जल्दी में बोल जा रही हो फिर उसके बाद आपको बैकफुट पे आना पड़ता है। सर वो मैंने रिवाइज अभी नहीं किया वो। हाँ, तो ये सब कंसेप्ट को